Good morning, student. How are you? I think all of you are fine. In your home, you are all are safe. Student, to you and your family a very happy दशहरा. आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं. आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे. साथ में भी ढेर सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे. ओके स्टूडेंट, we are studying science and technology paper first, and in this subject we are studying about different types of chemical reaction. In previous lecture I introduced you the chemical reaction, how to write a chemical reaction, how to balance chemical reaction, and also 3-4 types of chemical reaction. Okay, in that lecture I introduced you about endothermic and exothermic reactions. So first you understand what is this exothermic and endothermic procedure. To understand this procedure, here is one experiment, but now this experiment is reduced from your syllabus. You can read it. Okay. What happened in exothermic? Okay, exothermic procedure. You know that heat is given out in exothermic reaction. Therefore, the temperature of solution is increased. ओके कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है. किसमें? एक्सोथर्मिक प्रोसीजर में. ओके और एंडोथर्मिक में क्या होता है? द सॉल्यूशंस टेम्परेचर और द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिक्रीज. व्हाई? बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन. अंडरस्टैंड what happened in both the procedure? Now we will see in detail what is endothermic and exothermic. Okay, there is an exchange of heat in chemical reaction as well. According to some chemical reaction are exothermic while some others are endothermic. कुछ exothermic chemical reactions होते हैं और कुछ endothermic होते हैं. During exothermic chemical reaction, heat is given away when reactant are transformed into product. Exothermic में क्या होता है? जब reactant प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तब हीट बाहर निकलती है. वाइल ड्यूरिंग एंडोथर्मिक प्रोसीजर द रिएक्शन, ओके, द एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज आइदर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग और हैज़ टू बी सप्लाइड कंटिन्यूसली फ्रॉम आउटसाइड. एक्सोथर्मिक में क्या होता है? जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उस वक्त हीट बाहर निकलती है, उसमें से हीट रिलीज होती है. लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तब हीट एब्जॉर्ब होती है बाहर से या फिर हीट उसको देनी पड़ती है. अंडरस्टैंड? तो इसी वजह से क्या होता है, एक में इसमें एंडोथर्मिक में टेम्परेचर लेस हो जाता है जबकि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. अंडरस्टैंड? सी हियर इज 2 एग्जाम्पल. One is endothermic reaction and another example of exothermic reaction. What is this example? CaCO3. Yes, means solid in state. When it is heated, okay, it gives CaO, calcium oxide, plus CO2, carbon dioxide, and this is the endothermic reaction. While CaO plus H2O, CO solid, H2O, L means liquid, so it converted into CaOH twice plus heat. This is the example of exothermic reaction. All of you understand? Okay, now let's see the next portion of this lesson, that is the rate of chemical reaction. To understand this portion, here are use your brain and some questions are there. You have to read it and you have to self analyze. If then also any problem or you will not understand, you can ask me. Okay, what is this? So rate of chemical reaction, it can be seen from some example which is given above. That some reaction are completed in short time, that is occur rapidly, while some other required long time. Okay, for completion, that is occur slowly. It means that the rate of different chemical reaction is different. कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं तो कुछ बहुत देर से चलते रहते हैं. मतलब केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो हर केमिकल रिएक्शन में अलग अलग होता है, एक ही जैसे नहीं होता. ओके, जैसे एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप एक तरफ
क्या करो, कुकिंग ऑयल लो और दूसरी तरफ वाटर लो और दोनों को भी हीट करना स्टार्ट कर दो। क्या दोनों भी एक ही टाइम पे बॉईल होना स्टार्ट होगी? नहीं। दूसरी तरफ मिल्क रखो या फिर अदर कोई लिक्विड लो, ऐसे 2-3 लिक्विड लो और आप उन तीनों को बॉईल करना स्टार्ट कर दो, हीट सप्लाई करो। क्या एक ही समय पे तीनों की तीनों या चारों की चारों सॉल्यूशन या लिक्विड्स बॉईल होना स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, अलग अलग टाइम लेंगे। ओके, तो उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन एक ही साथ नहीं होते, कुछ बहुत जल्दी रैपिडली हो जाते, कुछ स्लोली हो जाते। ये डिपेंड्स करते उसके रिएक्टेंट के ऊपर और अदर कुछ फैक्टर है उसके ऊपर। अब वही सब हमको यहाँ पे देखना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? लेट्स सी व्हाट इज दिस। ओके, some reaction occur at different rate on changing the condition. Okay, some reactions are occur different rate. For example, during winter long time is required for setting milk into curd, while at higher temperature during summer the rate of setting of milk increase and the curd is formed early. यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल है, देखो कि विंटर में ना दही जमाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन समर में जल्दी हो जाता है। या फिर मम्मी इडली या ढोकला बनाती है तो मम्मी को पूछो, उसका बैटर ना समर डेज में बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है लेकिन विंटर में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, या विंटर में कभी कभी अच्छे से वो हो भी फर्मेंट भी नहीं हो पाता। ओके, नाउ लेट्स सी द फैक्टर विच डिसाइड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं या रेट के ऊपर असर करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको रिएक्टेंट तो पता है, द सब्सटेंस विच आर इन्वॉल्व और टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। let see the reaction of metal, aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid. On reaction of both aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid, H2 gas is liberated and water soluble salt of these metal are formed. However, the reaction of the minimum metal takes place faster as compared to zinc metal. ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि उन्होंने कहा है कि एल्यूमिनियम और जिंक मेटल लो और उन दोनों को भी डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में लेके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H2 गैस निकल जाएगा और हमें एल्यूमिनियम मेटल और जिंक मेटल के जो भी साल्ट्स हैं, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कम्पेयर टू जिंक मेटल। तो उन्होंने कहा है कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी जिंक के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होगा? द नेचर ऑफ मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस मेटल का नेचर। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक। Aluminium is more reactive than zinc. Therefore, the rate of aluminium with hydrochloric acid is higher than that of zinc. Nature of or reactivity of reactant influence the rate of chemical reaction. So, what is the first factor which influence the rate of chemical reaction? That is nature of reactant. If the reactant is highly reactive or more reactive, the reaction takes place rapidly. Otherwise, it will be go slowly. Understand? We are going to learn more about reactivity of metal in chapter metallurgy. मेटलर्जी में आपको एक यही सीरीज ही है कि मेटल की रिएक्टिविटी फ्रॉम हायर टू लोअर। ओके, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन सी लो रिएक्टिव मेटल है। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है या फिर एलिमेंट्स है उसके साथ केमिकल रिएक्शन का रेट फास्ट होगा एज कम्पेयर टू लो रिएक्टिव। अंडरस्टैंड? व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? द नेक्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। ओके, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी है। ओके, एक प्रोसीजर, ये आप ये प्रोसीजर लर्न कर लो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। देखो, आप 2 ग्लास लो, एक आप 2 पानी से भरे हुए ग्लास लो। एक में आप पाउडर शुगर डालो और दूसरे में आप क्रिस्टल शुगर डालो और दोनों को भी स्पून से हिला दो। कौन सी जल्दी डिजॉल्व होगी? पाउडर शुगर और क्रिस्टल शुगर? पाउडर शुगर। व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल। ओके, सेम थिंग हियर।
You must have found in above activity that CO2 effervescence is formed slowly with the pieces of शाहबादी tile while at faster speed with the powder. यहाँ पे आपके लिए एक्सपेरिमेंट है, क्या है वह उन्होंने कहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लो, बैलेंस लो, मेजरिंग सिलेंडर लो और एक में एक इसके लिए आप शाहबादी टाइल के पीसेस लो और दूसरे इसमें आप शाहबादी जो ये होती है ना शाहबादी टाइल, तो उसके पाउडर लो और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो। एक टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो और एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, द पीसेस ऑफ शाहबाद टाइल जो छोटे छोटे टुकड़े हैं टाइल्स के वो डाल दो और दूसरे इसमें आप उसको क्रश करके उसकी पाउडर डाल दो और फिर आप उसके केमिकल रिएक्शन को देखो। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जिसमें पाउडर था उसमें से बहुत जल्दी CO2 इफरवेंसेस मतलब गैस आने लगेगी आज कंपेयर टू जिसमें पीसेस थे। इसका मतलब इस एग्जांपल से ये प्रूफ होता है द अबो observation indicate that the rate of reaction depends upon the size of particle of the reactant taking part in reaction. Smaller the size of the reactant particle, higher is the rate of reaction. Understand? Smaller is the size of reactant of the particle, higher is the rate. मतलब पार्टिकल की साइज जितनी स्मॉल होगी, जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि पाउडर शुगर होगी तो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी, उसी हिसाब से अगर वो छोटे छोटे पीसेस या पाउडर में होंगे एज कम्पेयर टू पीसेस तो वो रिएक्शन का रेट कैसे होगा, फास्ट होगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेट अस कंसिडर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ CaCO3 पाउडर। Dilute hydrochloric acid reacts slowly with CaCO3 while concentrated hydrochloric acid react very fastly. On the other hand, the reaction with concentrated HCl takes place rapidly. It means that the concentrated acid react faster than the dilute acid. Understand? इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट होंगे उसके साथ रिएक्शन का रेट कैसे होगा, फास्ट होगा या फिर फास्टर होगा, ओके जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो रिएक्टेंट का रेट कैसे होगा, रिएक्शन का स्लो हो जाएगा। अब तक हमने कितने फैक्टर देखे, 3 फैक्टर देखे। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा साइज ऑफ रिएक्टेंट और ये थर्ड था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट सी द फोर्थ फैक्टर दैट इज temperature of reaction. While studying decomposition reaction, you have carried out decomposition of limestone. In this activity, lime water does not turn milky before hitting limestone because of zero rate of reaction. From this, it is learned that the rate of reaction increased on increasing temperature. इसके लिए मैं फिर से आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ स्टूडेंट। आप क्या करो, हॉट वाटर लो और कोल्ड वाटर लो और दोनों में भी एक एक स्पून शुगर डाल दो। आप वहाँ पर भी आप दोनों को भी आप अच्छे से चम्मच से हिलाओ। व्हेन यू ऑब्जर्व दैट द शुगर विच इज़ इन हॉट वाटर ग्लास इट डिजॉल्व फास्टली एज कम्पेयर टू कूल वाटर, ओके, बिकॉज टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही बताया कि जब हम जब लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो उन्होंने कहा कि उसको वहाँ पे हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हीट देने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, अब तक हमने कितने फैक्टर देखे, 4 फैक्टर देखे जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। पहला हमने देखा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, थर्ड हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नेक्स्ट था टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज कैटलिस्ट। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट को समझना है ना तो बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, देखो जैसे अभी IPL चल रहा है तो आप अंपायर के साथ कैटलिस्ट को कंपेयर करो। अंपायर जो होता है जो किसी भी टीम की तरफ से नहीं खेलता है, वो खाली क्या करता है, डिसीजन देता है।
ओके, तो कैटलिस्ट भी वही रोल प्ले करता है केमिकल रिएक्शन में. Catalyst is does not involve in a chemical reaction. It just influence the rate of chemical reaction. Okay, see here. Here is one example about it. On heating potassium chlorate, okay, KClO3. On heating potassium chlorate decompose slowly. The rate of above reaction either increased by reducing the particle size nor by increasing the reaction temperature. However, the KClO3 decompose rapidly in the presence of manganese dioxide. So here manganese dioxide is the catalyst. Okay, and it help to liberate O2 gas. No chemical change takes place on manganese dioxide. तो इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट है, जो क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है. द सब्सटेंस इन दोज प्रेजेंस ऑफ rate of chemical reaction change without causing any chemical change to it is called catalyst. जैसे मैंने आपको अंपायर का एग्जांपल दिया कि कैटलिस्ट इज द सच अ सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस, और उसके प्रेजेंस होने से, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज, बट दैट सब्सटेंस डज नॉट कॉज एनी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. सच ए टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट. Decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen takes place slowly at room temperature. The same reaction occurs at faster rate on adding manganese dioxide powder in it. Understand? So what is the next factor? That is catalyst. Student, I hope all of you understand. And take homework, today's homework, that you have to write down the factor which affecting the rate of chemical reaction. If you can't understand any point, you can ask me. Okay, take care. The remaining portion we will see in next lecture.